Hello everyone. Today in this video we will be doing the explanation of the first part of a very interesting story, The Summer of the Beautiful White Horse, which is the first chapter of your snapshot book. This story, The Summer of the Beautiful White Horse, is written by William Saroyan and it was published within the collection My Name is Adam. Now without further ado, let's get started. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. So, this is a very interesting story about an Armenian extended family called Garogalian family. Now, this family was very poor, but still, then they were very proud and they had their own morals. That means they never stole, they never took advantage of others, and they were known for their trust and honesty. ये कहानी दो गरीब आर्मेनियन बॉयज़ के बारे में है जो कि एक ऐसी ट्राइब को बिलोंग करते हैं जो अपने ट्रस्ट और अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है. सो इन दिस स्टोरी वी कम अक्रॉस सम कैरेक्टर्स स्पेशली विद दीज टू बॉयज़ अरम एंड मुराद who are up to something, but at the same time they see to it that they keep up their family values. So let's see how they are going to do it. One day back there in the good old days when I was 9 and the world full of every imaginable kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. So, this story is narrated by a boy called Aram, and he says that when he was 9 years old, everything around him was delightful and mysterious, and life was full of very grand imaginative things. Aram इस कहानी का नरेटर है और वो कहता है कि जब मैं 9 साल का था उस वक्त की बात तो बताता है और कहता है जब मैं 9 साल का था तब जो वर्ल्ड था वो बहुत सुंदर था, बहुत सारी मिस्ट्रीज से भरा हुआ था और बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था. सो ही वॉज वेरी हैप्पी बॉय एट दैट टाइम एंड ही हैड अ कज़न हुज नेम वॉज मुराद. अरम का एक कज़न था जिसका नाम था मुराद, एंड मुराद वॉज कंसिडर्ड केजी बाई एवरीबडी बट अरम डिड नॉट थिंक सो. सो जो मुराद था उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो कुछ ऐसी थी कि हर कोई इंसान उसे क्रेजी समझता था, पागल समझता था, लेकिन अरम उसके बारे में ये नहीं सोचता था. सो वन डे मॉर्निंग एट 4 o'clock मुराद केम टू अरम्स हाउस एंड अरम वॉज स्टिल स्लीपिंग एंड मुराद स्टार्टेड टैपिंग एट द विंडो फ्रॉम आउटसाइड. सो एक दिन सुबह लगभग 4 बजे के आसपास मुराद अरम के घर पर आया और अरम उस वक्त सो रहा था और 4 बजे मुराद ने अरम की जो विंडो थी उसको खटखटाना, टैप करना शुरू किया. अरम, he said. I jumped out of bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. So Murad called him Aram by his name and woke him up. And Aram got up and looked outside. When he looked outside, he said that he couldn't believe what he saw. That means there was something which was unbelievable. ओके, सो मुराद अरम के घर पर आया, उसने अरम को आवाज़ लगाकर जगा दिया और जब अरम उठा उसने विंडो से बाहर झांक कर देखा तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ. दैट मीन्स उसके सामने कोई ऐसी चीज़ थी जिस पर वो विश्वास नहीं कर पा रहा था. It wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. So he says that it is still not morning yet, but it was summer, so there was enough light, and he had understood that it was morning and he is not dreaming. Whatever is in front of him, that is true. तो अरम कहता है कि ऑल्दो अभी मॉर्निंग नहीं हुई थी, सुबह पूरी तरह से हुए नहीं थी, लेकिन गर्मियों के दिन थे, समर टाइम था, तो गर्मियों में क्या होता है सुबह उजाला थोड़ा जल्दी हो जाता है. तो कह रहा था कि मॉर्निंग हालांकि पूरी तरीके से नहीं हुई थी लेकिन वहाँ पर इतना उजाला था, इतनी लाइट थी कि वो ये समझ सकता था कि जो भी उसके सामने है वो सच है, वो कोई सपना नहीं देख रहा. My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. So what was that unbelievable thing? That Murad was sitting in a beautiful white horse. Okay, अरम को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? एक्चुअली जो मुराद था वो एक सुंदर से वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ था और अरम इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मुराद उस सुंदर से वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है.
I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. So, in order to make sure that it is true and real, he rubbed his eyes and saw outside. Okay, इस बात पर विश्वास करने के लिए कि जो मैं देख रहा हूँ वो सच है, वो सपना नहीं है, उसने अपनी आंखों को मला और फिर खिड़की से बाहर झांका. Yes, he said in Armenian, it's a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to write. So at the very moment Murad said in Armenian language that yes, it is a horse and you are not dreaming at all, and if you want to ride, do come outside fastly. ओके और जब मुराद ने ये देखा कि अरम जो है अपनी आंखों को मल रहा है, उसको विश्वास नहीं हो रहा कि जो वो देख रहा है वो सच है या नहीं है, तो उसने आर्मेनियन लैंग्वेज में बोला कि हाँ ये हॉर्स ही है, तुम कोई सपना नहीं देख रहे, और अगर तुम्हें राइडिंग करनी है तो जल्दी से बाहर आ जाओ. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. So Aram says in a very humorous tone that Murad was such a nice fellow. He always enjoyed being around and he enjoyed every moment to the fullest in comparison to others. But what he was doing now, it is hard to believe. Aram कहता है कि हालांकि मैं अपने भाई को जानता हूँ, अपने कज़न मुराद को जानता हूँ, और मुझे ये पता है कि इस वर्ल्ड में जितने भी लोगों ने गलती से जन्म ले लिया, दैट मीन्स वो एक ह्यूमरस तरीके से बात कर रहा है, और वो कहता है कि जितने भी लोगों ने इस धरती में जन्म लिया है उन सब में सबसे ज़्यादा मुराद अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, लेकिन वो जो अभी कर रहा है इस बात पर मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा. सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट वाई इट इज़ टू टफ टू बिलीव. ओके, उसे इस बात पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा, इस पर विश्वास करना उसके लिए इतना मुश्किल क्यों है. सो ही टेल्स अस द रीज़न. ही सेज इन द फर्स्ट प्लेस my earliest memories had been memories of horses and my first longings had been longings to ride. This was the wonderful part. In the second place, we were poor. This was the part that wouldn't permit me to believe what I saw. He tells us two reasons for not being able to believe on his eyes. वो हमें दो रीजन बताता है इसके. So what were the reasons? First reason was that in his earliest days when he was small, he used to always think about horses and one of his first wishes was to ride on a horse. आराम हमको बताता है कि जब वो छोटा था तो वो हमेशा से चाहता था कि वो हॉर्स राइडिंग करे. ये उसकी बहुत ज़्यादा उसको इस बात की इच्छा थी कि वो हॉर्स राइडिंग करे, तो इसलिए उसको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा. बिकॉज ऐसा होता है ना कि जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत लंबे टाइम से विश कर रहे होते हैं या कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो जब वो चीज़ एक्चुअल में हो रही होती है तो उस पर विश्वास करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो वही उसके साथ हो रहा था. सो दैट वॉज दी वंडरफुल पार्ट. एंड द सेकेंड रीज़न वॉज दैट दे वर वेरी पुअर. वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे. एंड बीइंग पुअर मीन्स हैविंग नो मनी, सो दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड अ हॉर्स. और वो इतने ज़्यादा गरीब थे कि उनके पास किसी भी ऐसे घोड़े को अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं थे. तो इस वजह से वो उस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मुराद के पास में रियल में वो वाइट हॉर्स है. वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन. Every branch of the Garogalian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. He says that each people of Garogalian family was living in poverty and nobody had money. And their poverty is the most amazing and comical in the world. वो कहता है कि हमारी पूरी की पूरी ट्राइब जो है वो पॉवर्टी स्ट्रिकन है. दैट मीन दे आर एक्सट्रीमली पुअर. वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और किसी के पास भी बिल्कुल पैसे नहीं हैं. एंड सेकेंड थिंग इज सेज दैट इट इज़ द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड. और वह कहता है कि हमारी जो गरीबी है सबसे ज़्यादा अमेजिंग है, सबसे ज़्यादा कॉमिकल है. दैट मीन्स अमेजिंग है, दैट मीन्स इस पर बिलीव करना थोड़ा टफ है, और कॉमिकल है दैट मीन्स थोड़ा फार्शियल है, थोड़ा फ़नी है. और वह ऐसा क्यों कहता है, इसका रीज़न क्या है. देन ही सेज nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old man of the family. Most important of all, though, we were famous for our honesty. So he gives us reason that why this poverty is comical and amazing. So he says that they were so poor that they did not even understood that how they have money to have enough food for them. Even the oldest member of the family doesn't know it. वो ये कहता है कि हम इतने गरीब हैं, हमें ये भी समझ में नहीं आता
कि हम लोग अपना पेट भरने के लिए खाना कैसे अरेंज करते हैं। और यहाँ तक कि जो हमारे फैमिली के सबसे बड़े मेंबर हैं, सबसे बूढ़े मेंबर हैं, उनको भी इसका आंसर नहीं पता कि हम लोग खाना कैसे अरेंज करते हैं। सो इन दिस वे इट इज़ कॉमिकल। एंड देन ही सेज दैट मोस्ट ऑफ ऑल वी वर नोन फॉर आवर ऑनेस्टी। और फिर वो कहता है कि इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो मेरी फैमिली है वो ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, जो उनकी ट्राइब है वो ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। सो ऑल्दो उनके पास उनकी रेगुलर अर्निंग का कोई जरिया नहीं है, और लेकिन फिर भी वो सब बहुत ऑनेस्ट हैं। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. So he says that for almost 11 century, one century means 100 years. So for almost 11 centuries, they are known for their honesty. अरम बताता है कि लगभग पिछली 11 सेंचुरी से, लगभग पिछली 11 शताब्दियों से वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं। इवन वेन दे वर रिच, इवन ड्यूरिंग दोज डेज दे डिड नॉट लूज देयर ऑनेस्टी। यहाँ तक कि जब वो रिच भी हुआ करते थे, जब वो वेल्दियस्ट फैमिली में से भी एक हुआ करते थे, उस वक्त भी वो इतने ही ऑनेस्ट थे, और आज जब वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं तब भी वो इतने ही ऑनेस्ट हैं। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. He says that Garogalian family and that Armenian tribe were always proud of their honesty, and after that they were believer of right and wrong. So they never took advantage of anybody and they also never steal. तो आरम कहता है कि हमें अपनी ऑनेस्टी पर प्राउड है, ठीक है, हमको अपनी ईमानदारी पर बहुत ज़्यादा गर्व है, तो इसलिए हम में से कोई भी चोरी नहीं कर सकता। सेकेंड थिंग, हम राइट और रॉन्ग के बिलीवर हैं। दैट मीन्स हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जो कि गलत हो, जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे, और इसीलिए हमने कभी भी किसी भी इंसान से कभी कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। तो चोरी की बात तो बहुत दूर की है। सो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो अरब हमको बताता है अपनी टाइप के बारे में, दैट दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड दे आर नोन फॉर इट एंड दे आर प्राउड ऑफ इट एंड दे आर बिलीवर ऑफ राइट एंड रॉन्ग एंड दे नेवर हार्म एनी वन एंड नेवर टेक एडवांटेज ऑफ एनी बडी। अरम कहता है कि हमारी ट्राइब जो है ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, हम राइट और रॉन्ग के बिलीवर हैं, हमने कभी भी किसी भी इंसान का फ़ायदा नहीं उठाया। तो इस बात पर विश्वास करना कि जो घोड़ा है ये मुराद ने चुराया है, ये बहुत टफ है। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family asleep or awake. Aram was wondering, with all these qualities, how Murad was able to get a horse. For getting a horse, either you have to be very rich or you have to steal, and they don't do any of these things. So he was unable to understand that how did Murad get that. आरम ये सोच रहा है कि मुराद को ये घोड़ा मिला कैसे, बिकॉज एक ऐसे घोड़े के लिए या तो बहुत रिच होना ज़रूरी था, या फिर अगर वो रिच नहीं है तो हो सकता है कि उसने चोरी की हो। लेकिन आर्मेनियन ट्राइब का कोई भी इंसान चोरी नहीं कर सकता और वो बहुत ज़्यादा गरीब भी हैं, तो उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मुराद के पास ये घोड़ा कहाँ से आया। Even though he could see it, he could smell it, and he could hear it breathing, and while looking at the horse, he felt so excited because it was so wonderful and magnificent, but still he was unable to believe that it is Murad who has brought that horse. सो इवन दो वो मैग्नीफिशेंट घोड़ा अरम के सामने था, वो उसको देख सकता था, वो उसको स्मेल कर सकता था, उसकी ब्रीदिंग को वो सुन सकता था, लेकिन फिर भी वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मुराद इस वाइट हॉर्स को यहाँ लेकर के आया है। Then he says that this horse can't belong to Murad or to any other family member of Garogalian family, asleep or awake. That means he even can't dream about having that horse. सो अरम कहता है कि इवन सपने में भी मैं ये नहीं सोच सकता कि ये जो हॉर्स है ये मुराद का है, और मुराद का तो क्या, मैं ये नहीं सोच सकता कि किसी भी गैरोगेलियन फैमिली के मेंबर का ये घोड़ा है।
एंड देन अगेन ही टेल्स अस द रीज़न कि क्यों उसको इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा, क्यों वो ये नहीं सोच सकता कि ये जो हॉर्स है ये मुराद का है. सो ही सेज, बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it he must have stolen it, and I refuse to believe he had stolen it. No member of the Garogalian family could be a thief. सो वो ये सोचता है कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है कि मुराद ने इस घोड़े को खरीदा है. एंड ही कांट इवन थिंक दैट मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स, बिकॉज एनी मेंबर ऑफ गैरोगिलियन फैमिली कांट बी अ थीप. सो वो ये सोच रहा है कि मुराद जो है इस घोड़े को ख़रीद नहीं सकता, बिकॉज उसके पास इतने पैसे तो है नहीं, और अगर उसने इसे ख़रीदा नहीं है दैट मीन्स उसने इसको चुराया है. लेकिन मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता कि मुराद ने इस घोड़े को चुराया है, बिकॉज गैरोगेलियन फैमिली का कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता और मुराद चोरी नहीं कर सकता है. आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. So Aram was not able to shout that how he could got that. So at first he was looking at the horse and then at his cousin. They were quiet and seemed humorous. अरम को बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा था कि ये घोड़ा उसके सामने है. तो वो एक बार घोड़े को देखता और फिर मुराद को देखता, और जब वो उन दोनों को देख रहा था तो वहाँ पर एक बहुत पायस स्टिलनेस थी, बहुत वहाँ पर शांति थी, और साथ में ही वो दोनों चीज़ें जो थी वो ह्यूमरस भी थी, उसे देखकर हंसी भी आ रही थी. On one hand, he was delighted, that means he was happy because his longing was to be fulfilled, that means he always wanted to ride a horse and he could do it now. But on the other hand, he was frightened because he was thinking about so many options that how he could get the horse. तो अरम एक तरफ जो था वो खुश था बिकॉज उसकी जो इच्छा थी हॉर्स राइडिंग की वो फाइनली पूरी होने जा रही थी, वो अब हॉर्स राइडिंग कर सकता था, तो इस बात से वो खुश था. लेकिन उसी टाइम पर वो दूसरी तरफ दुखी भी था और डरा हुआ था. क्यों डरा हुआ था? बिकॉज उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि मुराद को ये हॉर्स कैसे मिला, और उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि कैसे मुराद इस हॉर्स को लेकर के आया है. तो इसलिए वो खुश भी था और डरा हुआ भी था. मुराद, आई सेड, where did you steal this horse? So immediately he wanted to clear his doubt. So he asked Murad that where did he steal that horse? अपने डाउट को क्लियर करने के लिए उसने मुराद से पूछा कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया. Leap out of the window, he said, if you want to ride. But Murad did not answer the question. He said, if you want to ride, come out and jump through the window. लेकिन मुराद ने उसकी बात का आंसर नहीं किया और उसके क्वेश्चन को अनदेखा करते हुए वो बोला कि अगर तुम्हें इस पर राइडिंग करनी है तो जल्दी से खिड़की से कूद करके बाहर आ जाओ. It was true then he had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I chose. Because Murad did not answer the question, so Aram immediately concluded that Murad must have stolen the horse. मुराद ने उसकी बात का आंसर नहीं दिया तो अरम को लगा कि हाँ मुराद ने ये घोड़ा चुराया है. एंड देन ही थिंक दैट एनीवेज ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड द हॉर्स, सो नाउ इट्स माय चॉइस. एंड देन अरम सोचता है कि मुराद यहाँ पर सिर्फ मुझे इनवाइट करने के लिए आया है हॉर्स राइडिंग के लिए, और अब मैं जाऊँ या ना जाऊँ ये मेरी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है. Well, it seemed to me, stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. So now at this point where he was going to fulfill his desire of riding horse, he's just telling us his thought about stealing. And he says that he thinks that if you steal a horse for riding, it is not the same as stealing money. So he was trying to justify his cousin and himself. यहाँ पर अरम जो है अपने थॉट्स हमें बताता है कि उसके अकॉर्डिंग स्टिलिंग क्या होती है, और वो ये आंसर करता है कि अगर आप सिर्फ राइडिंग के लिए किसी घोड़े को चुरा रहे हैं तो ये बिल्कुल भी वैसा नहीं जैसे कि आप पैसे चुराते हैं, ये बिल्कुल अलग बात है. तो इस तरीके से वो अपने आप को और अपने कज़न के इस स्टेप को, हॉर्स राइडिंग के इस स्टेप को वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है. फॉर ऑल आई न्यू, maybe it wasn't stealing at all. If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do.
And then he says that it is not stealing at all because they were crazy about horses and they want to ride over it. और फिर वो कहता है कि अगर कोई भी इंसान मेरे और मुराद की तरह हॉर्स राइडिंग के लिए क्रेजी हो तो और अगर वो सिर्फ राइडिंग के लिए किसी हॉर्स का यूज़ करे तो वो स्टीलिंग बिल्कुल भी नहीं होगी एंड इट विल बिकम स्टीलिंग ओनली इफ़ ही ट्राइज टू सेल द हॉर्स फॉर मनी एंड ही वॉज श्योर दैट दे विल नेवर डू इट। और वो ये कहता है कि स्टीलिंग ये तभी कहलाएगा, चोरी ये तभी कहलाएगा जब हम इस घोड़े को बेच देंगे पैसों के लिए। और अगर हम इसे सिर्फ अपनी राइडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये स्टीलिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो ये चोरी बिल्कुल भी नहीं है। और मैं जानता हूँ कि हम कभी भी इस घोड़े को नहीं बेचेंगे। सो इन दिस वे ही वॉज ट्राइंग टू जस्टिफाई द एक्ट ऑफ स्टीलिंग। इस तरीके से वो अपने इस स्टीलिंग के एक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। और वो जस्टिफाई क्यों कर रहा है? बिकॉज he has already told us that any member of the Garogalian family cannot be a thief। क्योंकि जो गैरोगिलियन फैमिली है उसका कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता। तो अगर वो चोरी करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात होगी और उनके जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, उनको वो डिसरिगार्ड कर देंगे। तो इसलिए वो अपने इस एक्ट को जस्टिफाई कर रहा है। Let me put on some clothes, I said. All right, he said, but hurry. I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. So he said to Murad that let me put on some clothes and he replied, do quickly and come. वो मुराद से कहता है कि मुझे कुछ कपड़े पहनने दो और मुराद इन रिप्लाई कहता है कि जल्दी करो। एंड ही पुट ऑन सम क्लोथ्स एंड देन जम्प्ड आउट फ्रॉम द विंडो एंड देन सेट ऑन द हॉर्स बिहाइंड हिज कज़न मुराद। फिर वो जल्दी से कपड़े पहन लेता है और अपनी खिड़की से छलांग मारकर बाहर आ जाता है और जल्दी से मुराद के पीछे उस घोड़े पर बैठ जाता है। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches, and country roads. So he said that his house was located at the edge of town on Walnut Avenue. वो बताता है कि उसका जो घर है वो टाउन के बिल्कुल एज पर, बिल्कुल किनारे पर, वॉलनट एवेन्यू पर है। बिहाइंड हिज हाउस देयर वॉज रूरल एरिया, और उसके घर के पीछे जो है बिल्कुल रूरल एरिया स्टार्ट होता है। एंड इट वॉज कंसिस्ट ऑफ वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिस्ट्रिक्ट्स एंड कंट्री रोड्स। और उस एरिया में बहुत सारे वाइन यार्ड्स हैं। वाइन यार्ड्स मीन्स प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स। एंड ऑर्चर्ड्स हैं। ऑर्चर्ड्स आर द गार्डन विच हैज़ फ्रूट ट्रीज। ओके, ऑर्चर्ड्स वो गार्डन होते हैं जिनमें फल के पेड़ लगे होते हैं। एंड देयर आर सम इरिगेशन डिस्ट्रिक्ट्स। व्हाट इज इरिगेशन डिस्ट्रिक्ट? irrigation districts are the area which is used for consuming water and then it is used for irrigation। कोई ऐसा एरिया जिसमें हम वाटर को कंजर्व करें और बाद में सिंचाई के लिए या इरिगेशन के लिए उसका हम यूज़ करें तो उसको हम इरिगेशन डिश कहते हैं। सो उसके घर के पास में ये सारी चीज़ें थी। वाइन यार्ड्स थे, ऑर्चर्ड्स थे, इरिगेशन डिचेस थी और कंट्री रोड्स थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट। So quickly they came out of their house area and now they were on the Olive Avenue। अब वो अपने घर के आसपास वाले एरिया से बाहर आ गए थे और अब वो ऑलिव एवेन्यू पे थे। एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट, दैट मीन्स ही बिगिन टू वॉकिंग स्लोली। और फिर उस घोड़े ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। So remember, it was early in the morning, about 4 o'clock, so the air was fresh and they were enjoying riding their horse. So remember, it was early in the morning, about 4 o'clock, and the air was fresh and they were enjoying their horse riding। सुबह सुबह का वक्त था तो हवा बहुत अच्छी चल रही थी, फ्रेश एयर थी और वो अपनी हॉर्स राइडिंग को बहुत इंजॉय कर रहे थे। My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing। I mean, he began to roar। And then he says that my cousin Murad, who is the craziest person of his family, he started singing and even he started roaring। That means he was singing very loudly because he was very happy। उसके बाद आरम कहता है कि मेरा कज़न मुराद, जो कि हमारी फैमिली के क्रेजियस मेंबर्स में से एक है, वो गाने गाने लगा। इवन वो बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने लगा। रोर मीन्स क्या होता है? बहुत ज़ोर से आवाज़ करना या दहाड़ना। तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाकर गाने लगा बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी। Every family had a crazy streak in it somewhere,
and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. So Aram says that every family has one person who is considered to be crazy, and in his family, Murad was the one who had inherited the qualities of craziness. आरम कहता है कि हर एक फैमिली में कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसमें क्रेजी स्ट्रीक होती है, जिसमें ऐसी कुछ क्रेजीनेस की हैबिट्स होती हैं, और उनकी फैमिली में मुराद वो इंसान था जिसको उनकी ट्राइब से क्रेजीनेस की क्वालिटी जो है वो इनहेरिटेंस में मिली थी. बिफोर हिम was our Uncle Khusro, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley. Then he says that before Murad, their uncle Khusro was believed to be a crazy fellow, and he was a huge man with powerful head of black hair and the longest mustache in San Joaquin Valley. आरम कहता है कि मुराद से पहले उनके एक अंकल थे, अंकल खुसरो, जो कि क्रेजी समझे जाते थे, और वो बहुत इनॉर्मस थे. दैट मीन्स बहुत उनकी हैवी बॉडी थी, और उनका जो सर था वो बहुत घने काले बालों से भरा हुआ था, और पूरी सैन जोकिन वैली में उनकी सबसे ज़्यादा लंबी मूछें थी. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." He always spoke as he was irritated, and his temper was always furious, and he always seemed to be angry. जो अंकल खुसरो था उनका नेचर कुछ ऐसा था कि वो हमेशा इरिटेटेड लगते थे, ऐसा लगता था कि हमेशा गुस्से में हैं. एंड whenever he felt impatient, what he used to do, he would stop anyone by shouting at them, and what he would say, "It is no harm, pay no attention to it." ओके और जब भी वो इम्पेशेंट होते, वो किसी भी इंसान को जो है एक बात कहकर चुप करा देते. हमेशा वो एक ही बात कहते. वो बात क्या थी? दैट इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. वो हर किसी से हर बात पर यही कहते, इसमें कोई हार्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो. That was all. No matter what anybody happened to be talking about. So this fellow, Uncle Khusro, does not allow anyone to speak in front of him for a long time. And it doesn't matter what the other person is saying to him. He always make him quiet by saying, "It is no harm, pay no attention to it." अंकल खुसरो जो थे वो किसी भी इंसान को अपने सामने बहुत देर तक नहीं बोलने देते थे, और इस बात का उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला इंसान क्या कह रहा है. वो हमेशा बस एक ही बात कहते थे कि इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, आप इस बात पर ध्यान मत दो. So once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. So one day what happened, Uncle Khusro was sitting at barber's shop, and his son Arak came running to him to tell him that their house was on fire. एक दिन क्या हुआ कि खुसरो अंकल जो थे वो बार्बर शॉप पे बैठे हुए थे अपनी मुस्टैच को ट्रिम कराने के लिए, और तभी उनका बेटा जो अरक था वो बहुत दूर से, लगभग 8 ब्लॉक दूर से वो दौड़ते हुए उनके पास आया, उनको ये बताने के लिए कि उनका जो घर है उसमें आग लग गई है. This man Khusro sat up in the chair and wrote, "It is no harm, pay no attention to it." So as we know what kind of person Uncle Khusro was, and he always remained irritated and furious. So he did not notice what the child was trying to tell me, and he just replied, "It is no harm, pay no attention to it." तो जब उनके बेटे ने उनको बताया कि हमारे घर में आग लग रही है, उन्होंने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि वो बच्चा क्या बोल रहा है. उन्होंने डायरेक्टली ये बोला कि कोई बात नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, इस पर ध्यान मत दो. The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khusro wrote, "Enough, it is no harm, I say." The barber tried to make him understand that his house was on fire, but again Uncle Khusro shouted at him and said, "It is no harm." तो वो जो बार्बर वहाँ पर था उसने उनको ये समझाने की कोशिश की कि अरे आपका घर जल रहा है, लेकिन फिर भी अंकल खुसरो ने ध्यान नहीं दिया, और फिर से उन्होंने यही बोला कि मैंने कह दिया है इसमें कोई नुकसान नहीं है, तो तुम भी इस पर ध्यान मत दो. सो दैट इज़ हाउ हिज अंकल खुसरो यूज्ड टू बिहेव. माई कज़न Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Zorab, who was practical and nothing else. So everybody considered that the streak of craziness had been inherited by Murad from Uncle Khusro, and Murad's father Jorab was a very practical and simple man. So हर किसी को यही लगता था कि जो
क्रेजीनेस की क्वालिटीज़ अंकल खुसरो में थी, वही क्वालिटीज़ जो हैं अब वो मुराद में आ गई हैं। और जो मुराद के फादर थे ज़ुराब, वो बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल मैन थे, तो उनमें ऐसी कोई भी क्वालिटीज़ नहीं थी। तो हर किसी को लगता था कि जो मुराद में क्वालिटीज़ हैं ये अंकल खुसरो की हैं। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kinds of spirit of her tribe had been from the beginning capricious and vagrant. Aram says that it happens in our tribe that a son can inherit his father's body but not his characteristics. So that's why they thought that Murad had inherited craziness from Uncle Khusro, not from his father. अरम कहता है कि हमारी ट्राइब में ये होता है, ज़रूरी नहीं कि जो इंसान है उसने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अपने फादर से इनहेरिट की हैं। हो सकता है कि कोई भी जो बेटा है उसकी जो बॉडी है वो उसके फादर से रिजेंबल करती हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उसकी क्वालिटी जो है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी अपने फादर की तरह ही होंगी। और इसीलिए उनको लगता है कि जो मुराद की ये क्वालिटीज़ हैं क्रेजीनेस की, ये उसने अंकल खुसरो से इनहेरिट की हैं। Then he sees that his time members are having different kind of qualities and they have been impulsive, unpredictable and nomadic behavior from the beginning. फिर आरम बताता है कि जो मेरे ट्राइब के मेंबर्स हैं उनमें बहुत अलग अलग क्वालिटीज़ हैं और वो शुरू से ही इम्पल्सिव और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर के रहे हैं और नोमेडिक हैं। नोमेडिक मीन्स उनका कोई प्रॉपर घर नहीं है, वो यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। We wrote and my cousin Murad sang. So they both were riding and Murad was still singing. For all anybody knew, we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belonged. So now they were at the old country, वो अभी old country वाले एरिया में थे। और आराम ये कहता है कि हमारे कुछ नेबर्स के अकॉर्डिंग हम इस जगह को बिलोंग करते हैं। ही इज़ नॉट श्योर अबाउट इट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेड दैट दे वर नोमेडिक, उनका कोई प्रॉपर घर नहीं था, वो यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, तो इसलिए वो पूरी तरह से श्योर नहीं है कि वो उस जगह को बिलोंग करता है या नहीं करता है, लेकिन उसके कुछ नेबर्स ऐसा कहते हैं कि वो ओल्ड कंट्री वाले एरिया को बिलोंग करता है। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। सो आफ्टर दैट दे स्टार्टेड मेकिंग द हॉर्स टू रन। उसके बाद उन्होंने बहुत तेज़ी से उस घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." So now after some time Murad said to Aram to get down because he wanted to ride alone. थोड़ी देर के बाद मुराद ने अरम से कहा कि तुम नीचे उतर जाओ, मुझे अकेले इस घोड़े पर राइडिंग करनी है। Will you let me ride alone? I asked. That is up to the horse, my cousin said. Get down. Aram said, "Okay, I will get down, but will you ride me alone?" That means he also wanted to ride the horse alone. And on it, Murad replied that I will allow, but I don't know the horse will allow you to ride it on it or not. ओके, आराम ने कहा ठीक है मैं उतर जाता हूँ, लेकिन क्या फिर तुम मुझे भी अकेले हॉर्स राइडिंग करने दोगे? तो मुराद ने रिप्लाई किया कि हाँ, मैं तो तुम्हें हॉर्स राइडिंग करने दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि ये घोड़ा तुम्हें अपने ऊपर राइडिंग करने देगा या नहीं करने देगा। The horse will let me ride, I said. We shall see, he said. Don't forget that I have a way with the horse. ओके, तो फिर अरम ने कहा कि मुझे घोड़ा अपने आप पर राइड करने देगा, मुझे वो राइडिंग करने देगा। और मुराद ने उसको रिप्लाई किया कि चलो हम इसको बाद में देखेंगे। एंड ही सेज दैट ही ऑलवेज हैज़ अ वे ऑफ डीलिंग विद हॉर्स, दैट मीन्स ही नो हाउ टू डील विद द हॉर्स। And after that Aram replied to him, "Well," I said, "anyway you have with the horse, I have also." मुराद ने अरम से कहा कि ये तुम ये मत भूलो कि मुझे इन घोड़ों के साथ डील करना आता है, मैं जानता हूँ कि घोड़ों को कैसे डील करना है, कैसे कंट्रोल करना है। और अरम ने रिप्लाई किया कि हाँ ठीक है, अगर तुम जानते हो कि घोड़ों के साथ कैसे डील करना है तो मुझे भी ये करना आता है और मैं भी उन्हें कंट्रोल करना जानता हूँ। For the sake of your safety, he said. Let us hope so. Get down. All right, I said, but remember, you have got to let me try to ride alone. मुराद ने अरम से कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें घोड़ों के साथ डील करना आता हो और यही तुम्हारी सेफ्टी के लिए अच्छा होगा, लेकिन अभी तुम नीचे उतर जाओ। सो एट दैट Aram reminded him that yes, you have to let me try to ride alone after your riding.
तो अरम ने उसको दोबारा से याद दिलाया कि हाँ ठीक है, तुम राइडिंग कर लो और उसके बाद तुम मुझे अकेले राइडिंग करने दोगे। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Wazire, run. As soon as Aram got down, Murad kicked the horse and told it to run by saying वजीरे रन। जैसे ही अरम जो है घोड़े से नीचे उतरा, मुराद ने उस घोड़े पर किक किया और उसको वो बोला वजीरे रन। उसने घोड़े को दैट मीन्स कहा कि अब तुम दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स स्नॉटेड एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। So as soon as he kicked it, the horse stood on its hind legs. Hind legs means back legs, and started running into a speed. And Aram said that it was the most beautiful thing he had ever seen. और जैसे ही मुराद ने उस घोड़े पर किक किया और उसने बोला वजीरे रन, वैसे ही वो घोड़ा अपने पीछे के पाँव पर खड़ा हो गया। उसने बहुत तेज़ से आवाज़ की और बहुत तेज़ी से दौड़ने लगा। अरम कहता है कि जब वो घोड़ा दौड़ रहा था, वो सबसे ज़्यादा सुंदर चीज़ थी जो उसने दुनिया में अब तक देखी थी। My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. So, what happened? Murad was riding on the horse beautifully and perfectly, and he went to the fields of dry grass, then to an irrigation ditch, and then he crossed the ditch on the horse. And after 5 minutes, he returned dripping wet. मुराद ने बहुत अच्छे से उस घोड़े पर राइडिंग की। वो ड्राई ग्रास के खेतों से होकर गया और इरिगेशन डिच को उसने क्रॉस किया, और 5 मिनट के बाद राइडिंग करने के बाद वो बिल्कुल पसीने से भीगा हुआ वापस आया। The sun was coming up. Now it's my turn to ride, I said. My cousin Murad got off the horse. Ride, he said. So it was morning and the sun was rising, and Aram said that it was his turn to ride. ओके सुबह का वक्त हो गया था और जो सन था वो राइज कर रहा था। एंड तब अरम ने मुराद से कहा कि अब मेरी राइडिंग करने की बारी है। सो मुराद गॉट ऑफ एंड हैंडेड ओवर हॉर्स टू अरम टू राइड ऑन इट। और इसलिए मुराद जो है घोड़े से उतर गया और उसने उस घोड़े को अरम को दे दिया ताकि वो उस पर राइडिंग कर सके। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. So Aram got onto the horse somehow, and then suddenly a fear came into his mind, and that was the most awful imaginable fear. अरम जो है उस घोड़े पर चढ़ गया और जैसे ही वो उस घोड़े पर बैठा, उसको अपने सबसे ज़्यादा इमेजिनेबल फियर जो है महसूस हुआ। बिकॉज अरम जो है बहुत लंबे टाइम से, बचपन से वो चाहता था कि वो हॉर्स राइडिंग करे, और जब भी वो उस चीज़ को इमेजिन करता था तो उसको एक अलग सा डर महसूस होता था। तो वही चीज़ उसको अभी भी महसूस हुई। बट द हॉर्स डिड नॉट मूव। लेकिन उसके बैठ जाने पर भी हॉर्स जो है अपनी जगह से नहीं हिला। Kick into his muscles, my cousin Murad said, What are you waiting for? We have to got to take him back before everybody in the world is up and about. So immediately Murad said, Kick on the muscles of the horse. It is only then the horse will begin to move. मुराद ने हमसे कहा कि उस हॉर्स की मसल्स पर किक करो, तभी वो अपनी जगह से हिलेगा। एंड मुराद वांट अरम दैट यू हैव टू कम क्विकली बिकॉज वी हैव टू टेक द हॉर्स बैक, अदरवाइज एवरीबडी वुड अवेक एंड कम टू नो अबाउट दिस, सो वी हैव टू कीप हॉर्स बिफोर एनीबडी हैज़ वोकन अप। मुराद अरम से बोला कि तुम किस बात का वेट कर रहे हो, जल्दी से उसकी मसल्स में किक करो, उसे जल्दी से उसकी मसल्स में मारो ताकि वो आगे बढ़े। और वो उसको रिमाइंड करवाता है कि हमें इस घोड़े को जल्दी से वापस भी ले जाना है, इससे पहले कि कोई भी इंसान जग जाए। और अगर कोई उठ गया और उन्होंने उनको देखा उस घोड़े के साथ तो उन्हें इस बारे में पता लग जाएगा। तो इसलिए वो अरम को वार्न करता है कि जल्दी से जाकर वापस आ जाओ। I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted, then it began to run. So Aram kicked the horse and once again the horse stood on its hind legs and made a noise and then it began to run. और जैसे ही जो अरम ने हॉर्स को किक किया, एक बार फिर से वो हॉर्स अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। उसने बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोर की एक आवाज़ की और फिर वो तेज़ी से दौड़ने लगा। I did not know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halebian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell, and then it continued running.
So as the horse started running, Aram was unable to control it, and the horse was out of control, and it started running. Instead of running to the fields and irrigation ditch, it ran to the vineyards of Dikran Halibian. Maybe Dikran Halibian is one of the habitants there, and it started jumping over the vines, that means the grape plants, and destroyed them. सो जैसे ही उस घोड़े ने दौड़ना शुरू किया, आराम उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। और जैसे जब मुराद राइडिंग कर रहा था, वो जो हॉर्स था वो ड्राई ग्रास की फील्ड की तरफ गया था, इरिगेशन डिच की तरफ गया था। लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया और इरिगेशन डिच की तरफ या फील्ड की तरफ जाने के बजाय वो डिक्रान हैलिबियन के वाइनयार्ड की तरफ चला गया। डिक्रान हैलिबियन जो है वहाँ का एक हैबिटेंट है, और जो हॉर्स था वो उसके वाइनयार्ड में, दैट मीन्स उसके ग्रेप्स के जो प्लांट्स थे वहाँ चला गया, उसने उनको पूरी तरह बर्बाद कर दिया। द हॉर्स lived over 7 vines before I fell, and then it continued running. So the horse was going on jumping and leaping, and Aram fell down from the horse, and the horse destroyed 7 vines before it make Aram fell down, and then it continued running. वो घोड़ा जो है बहुत तेज़ी से वाइनयार्ड्स की तरफ दौड़ता रहा, और अरम को नीचे गिराने से पहले उसने लगभग 7 वाइन्स जो थी वो ख़राब कर दी थी, और उसके बाद अरम को गिराने के बाद वो दौड़ करके आगे चला गया। So this was the explanation of the first part of the chapter, The Summer of the Beautiful White Horse. We will cover the remaining story in the next part. Till then, stay happy, stay healthy, and keep learning. Thank you.